So Jain students, this is our fourth lecture of our IC2 solution series. So far we have covered section A and section B also. Now we will be covering the section C. There are two questions. One is based on comparator and another one is BCD adder. So this is all what we have covered. Now let's proceed to the section C. Okay. So design a 4-bit binary comparator using logic gates. So covering the concept in detail, first we will start how a 1-bit comparator works. Okay, 1-bit comparator जैसे वर्क करेगा फिर उसी को हम एक्सटेंड करेंगे that how this 1-bit comparator definitely कुछ मल्टीपल क्वांटिटी में यूज करने होंगे हमें. So we are going to design a 4-bit binary comparator. Okay. And to design this 4-bit binary comparator, I will be using 4 1-bit comparators. That means 4 1-bit वाले comparator हम use करेंगे. So 1-bit comparator क्या है पहले उसको देख लेते हैं, बहुत basic form है. So that means there are 2 bits which are to be compared, A and B. इन दोनों को compare करते हैं. You can see 0 0 both are equal. So equal में 1 आ जाएगा आपके पास, greater or less में 0. Similarly, A is 0, B is 1. You can say that A is less than B. So A is less than B. बाकी दोनों 0. A is 1, B is 0. So A is greater than B. बाकी दोनों 0. Last case, A is 1, B is 1. That means A is equal to B. So this is the expression. Okay. So this is the truth table. Now we can write the expression for the same. This YG, if we check this YG, there is a single one. एक 1 दिख रहा है हमें, which is corresponding to the input condition 1 0. जब A 1 है, B 0 है, तो आपको YG 1 मिल रहा है. दैट मीन्स A 1 B 0, A P बार, जहां 0 है वहां बार से रिप्लेस करेंगे, जहां 1 है विदाउट बार से रिप्लेस करेंगे. सो दिस A ग्रेटर देन B, इसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, A B बार. ओके, A B बार. Similarly, लास्ट वाला कॉलम चेक करते हैं YL के लिए. देयर इज अ सिंगल वन ऑल्सो which is corresponding to the input condition 0 1. So you can check simply that A is 0, so A bar, B is 1, so B, so A bar B. So this A less than B, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास A bar B. Now this is for YE. इक्वल के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, there are 2 ones. एक 1 है corresponding to 0 0. That means YE is equal to A bar B bar. एंड देयर इज अनदर वन, एक 1 और भी है, इसलिए हमने प्लस कर दिया है दूसरे 1 के कोरस्पोंडिंग, विच इज A1 B1. दैट मीन्स A B. ओके, बट अगर आप ध्यान से देखें कि दिस स्ट्रक्चर इसके थ्रू जो निकल के आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, A B बार, ये A बार B. नाउ दिस A बार B बार प्लस A B, सिंपल टर्म्स में इसको देखें तो दिस इज XNOR. ओके, but this XNOR can be written as bar of XOR. Okay, तो ये भी कहा जा सकता है इसे. And what is A XOR B? So A XOR B is A bar B plus A B bar and whole bar, क्योंकि हमें बार, this bar is appearing here also. Okay, now this A bar B thing, this A bar B, this A bar B is YL, so YL, and this AB bar is YG, so YL plus YG bar. So you can check here that this is YL, which is A bar B, this is A, this is A bar, and this is B. So similarly here, this is B bar, and from upper side A is coming, so this becomes A B bar. That's why this is YG and this is YL. And अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए YL plus YG और ऊपर बार, that means NOR of YL and YG. So this is NOR of YL and YG, which is equivalent to YE. So जो एक्सप्रेशन हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते थे, हमने इस फॉर्म में ना लिख करके उसे YL और YG को यूज करते हुए लिखा है. ठीक है. So this is 1-bit comparator now. Okay, so this is 1-bit comparator. This we have already done.
now we can simply proceed towards the 4-bit binary comparison. Okay, but before starting with it, let's cover some basic of 4-bit comparison. So if there are two bits, two numbers A and B, and both are of 4 bits, A3, A2, A1 and A0. Similarly, B is also 4 bits, B3, B2, B1 and B0. Okay. So now if these two numbers are to be compared, then the total number of cases, like for this 2-bit comparison A and B, because if number of inputs were 2 only, सिर्फ 2 inputs थे तो 2 raised to power 2, total 4 cases थे हमारे पास. But हमारे इस केस के अंदर क्या है हमारे पास, A is of 4 bits and B is of 4 bits. Okay, so total number of inputs becomes 8. So 2 raised to power 8 cases will be there in the truth table. That means हमें truth table बनानी होगी. अगर हम इसी मेथड से चलना चाह रहे हैं, जैसे हमने 1 bit comparison देखा है, तो हमें बनाने होंगे 256 केसेस की ट्रुथ टेबल, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. ओके, की जा सकती है बट इट विल टेक अराउंड लेट्स से 1 पेज. इफ अगर एक पेज पे हमारी 25 एंट्रीज आती है, दैट मीन्स 10 पेजेस पे तो ट्रुथ टेबल आएगी. देन फ्रॉम दैट ट्रुथ टेबल वी हैव टू नोट डाउन द मेन टर्म्स एंड देन फाइनली कैलकुलेट द एक्सप्रेशंस फॉर लेस, ग्रेटर एंड इक्वल. सो दिस कैन बी ए टीडियस टास्क अगर हम ट्रुथ टेबल वाले मेथड से जाते हैं तो. बट हम इसको स्किप कर सकते हैं ट्रुथ टेबल वाले पार्ट को. We can simply prepare the expression using the pure logic. Okay, तो वो कैसे किया जाएगा, और एक्सप्रेशन की जगह हम सीधा सीधा भी हम काम कर सकते हैं. तो लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर द सर्किट बाय सिंपली यूजिंग 4 1-bit कंपैरेटर. तो 4 कंपैरेटर लेते हैं 1-1 बिट के, और उनके थ्रू 1-bit कंपैरेटर को सीधा सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देन वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस फॉर YG, YL एंड YE ऑल्सो. चलिए अब देखते हैं. तो ये मैंने ले लिए यहां पर 4 कंपैरेटर्स. ठीक है, जिसके अंदर हम लेबलिंग कर देते हैं दैट दिस इज माय A0, सॉरी दिस इज A3, B3, A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0. Okay. So this is, you can say YL3, this is YG3, this is YL2, YG2, YL1, YG1, YL0, YG0. Similarly, this is YE3, this is YE2, this is YE1 and this is YE0. ओके, सो हमने 4 कंपैरेटर्स ले लिए और हर कंपैरेटर के इनपुट और आउटपुट को लेबल कर दिया. ठीक है, नाउ गोइंग बाय द प्योर लॉजिक, सिर्फ लॉजिक यूज करते हम पूरा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं. हाउ, नाउ लेट्स प्रिपेयर द सर्किट फॉर YL. ठीक है, A इज लेस देन B. कैसे पता लगेगा A इज लेस देन B? तो फर्स्ट थिंग विच आई एम सेइंग इज कि जो हमने लिखा है कि दैट फर्स्ट केस A इज लेस देन B के लिए क्या होगा कि A3 इज लेस देन B3. तो अगर ये A3 B3 के लेवल पे ही मैं अगर देखूं, दैट मीन्स MSB ही छोटी है दूसरी MSB से, तो आगे देखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना. सो इफ A3 इज लेस देन B3, तो मैं कह सकता हूं कि A इज लेस देन B. पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स कि A 0 है और B 1 है. तो आगे देखने की क्या जरूरत है. एक नंबर 4 बिट का 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरा नंबर 4 बिट का 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये बताने के लिए कि A B से बड़ा है या छोटा है, सिर्फ इतने भी काम चल जाएगा, मुझे बाकी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स द फर्स्ट केस जो निकल के आया, इट इज A3 ग्रेटर देन A3 इज लेस देन B3. सिमिलरली सेकंड केस क्या हो सकता है. सेकंड केस ये हो सकता है कि ठीक है कि A3 और B3 के लेवल पे बात नहीं पता लग रही, दोनों सेम है. अब सेम है तो आगे जाना पड़ेगा. अब आगे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स A3 तो B3 के इक्वल है एंड A2 इज लेस देन B2. दूसरा ऑप्शन निकल आ गया हमारे पास.
दैट मीन्स A3 B3 के इक्वल है, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास y E3 एंड A2 लेस देन B2, दैट मीन्स सेकेंड वाले कंपैरेटर का कौन सा आउटपुट YL2, और ये कौन सा, यहां से कौन सा निकल के आएगा YL1। तो पहला ऑप्शन निकल के आया हमारे पास YL1, दूसरा ऑप्शन निकल के आया YE3 डॉट YL2। सिमिलरली तीसरा ऑप्शन क्या निकल के आएगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास निकल के आएगा कि A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2, दैट मीन्स पहले दोनों बिट इक्वल है, तो अब दोनों वहां से बात नहीं बनेगी, आगे जाना पड़ेगा, तीसरी बिट पे चलते हैं A1 B1 पर। तो A1 इज लेस देन B1, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स यहां से क्या निकल के आएगा YE3, यहां से निकल के आया YE2, दैट मीन्स पहले दोनों कंपैरेटर के आउटपुट अगर इक्वल हैं तो मुझे तीसरे कंपैरेटर पे जाना पड़ेगा, हो सकता है तीसरे कंपैरेटर के लेस के थ्रू मिल जाए मुझे, तो YL1। ठीक है, तो दिस इज माय थर्ड फैक्टर जिसकी वजह से मेरा लेस हो सकता है टोटल नंबर, टोटल A कैन बी लेस देन B। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है कि A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू B1, दैट मीन्स पहले तीनों इक्वल है, तो सिर्फ लास्ट का ऑप्शन बचता है दैट A0 B0 से कम हो जाए। तो इन दैट केस दैट मीन्स YE3 ये भी इक्वल है, YE2 ये भी इक्वल है, दैट मीन्स YE1, लास्ट केस लास्ट वाले से लेस पता लग जाए, सो YL0। तो दिस इज माय फोर्थ ऑप्शन जिसके थ्रू मैं अपना आंसर लेके आ सकता हूं। तो इन चारों ऑप्शंस को जनरेट करते हैं और चारों को ऐड कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां से देखते हैं कि एक तो मेरे पास क्या हो गया सीधा सीधा, फर्स्ट दिस इज YL3, ओके, सो YL3, सो दिस इज YL3 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है YE3 YL2, ये मेरे पास YL2 है और ये ऊपर से आया YE3, दोनों को प्रोडक्ट जनरेट किया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, सिमिलरली तीसरा ऑप्शन ये देखिए, इसके लिए YE3 YE2 YL1, सो ये YL1 है अपने पास, इसमें YE3 ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर से आ रहा है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे, दिस इज YE2, तो ये तीसरा ऑप्शन भी रेडी है, YE3 YE2 YL1। लास्ट ऑप्शन फोर्थ ये वाला YE3 YE2 YE1 YL0, सो दिस इज YL0, ये आ गया आपके पास ऊपर से ही YE3, ये आपके पास आ गया YE2 एंड दिस इज YE0। तो चारों ऑप्शंस रेडी हैं आपके पास। इन चारों ऑप्शंस को आप क्या कर दीजिए, एक और गेट में डाल दीजिए, दिस विल बिकम YL। चारों ऑप्शंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये लेस वाले आउटपुट के लिए हमने और गेट यूज किया, तो हम सब जगह अपनी कन्वीनियंस के लिए L लिख भी सकते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि जो जो गेट हमें लेस वाला आउटपुट निकालने में हेल्प कर रहा है हमने सब जगह L मार्क कर दिया। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रोसीड टू द ग्रेटर पार्ट। चलते हैं ग्रेटर की तरफ। तो ग्रेटर का पहला ऑप्शन सीधा सीधा जैसे इसके लिए किया है, A ग्रेटर देन B के लिए, तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा कि A3 इज ग्रेटर देन B3, दैट मीन्स YG3 के थ्रू अपनी बात बन जाए, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि A3 और B3 तो इक्वल हैं, दैट मीन्स पहली बिट के थ्रू यहां से A3 B3 के थ्रू नहीं पता लग रहा कि कौन बड़ा है, तो हम आगे चलेंगे कि हो सकता है कि A2 B2 से बड़ा हो जाए,
दैट मीन्स यहां से तो क्या निकल गया है आपके, दैट मीन्स अगर पहला कंपैरेटर इक्वल आउटपुट दे रहा है तो हम दूसरे पे चले जाएंगे, सही है। सिमिलरली थर्ड थिंग कि A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2, A1, बट A1 जो है वो B1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है आपके पास, दैट मीन्स YE3 YE2, पहले दोनों कंपैरेटर ने इक्वल आउटपुट दे दिया तो तीसरे कंपैरेटर का ग्रेटर ले लेंगे, ठीक है। दिस इज माय थर्ड थिंग, ये अपना सेकंड ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें तो आप देखेंगे वो क्या आ जाएगा कि पहले कंपैरेटर का आउटपुट भी इक्वल, दूसरे का भी इक्वल, तीसरे का भी इक्वल, लास्ट वाला जो LSB जब कंपेयर हो तो वहां से ग्रेटर पता लग जाए। तो दिस इज माय फोर्थ फैक्टर जिसकी वजह से ग्रेटर आउटपुट आ सकता है। सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। नाउ दिस इज माय YG, तो ये फर्स्ट थिंग। सिमिलरली दिस कैन बी माय सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है, YE3 इंटू YG2, तो ये YG2 तो आ गया, YE3 ये आपके पास ऊपर से आ रहा है, दिस सेम थिंग, इसको यूज कर लिया हमने, इसके थ्रू ग्रेटर पता लग रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है ग्रेटर के लिए, दिस वन YE3 YE2 YG1, तो ये YG1 है आपके पास, और इसी के अंदर YE3 यूज हो रहा है, ये YE3 है, ये YE2 है, तो ये दूसरा फैक्टर भी आ गया। तीसरा फैक्टर आ गया आपके पास ग्रेटर के लिए, एक तो सीधा सीधा था ये वाला YG3, देन बाकी हमने दोनों निकाले। लास्ट फैक्टर दिस वन YE3 YE2 YE1 YG0, तो इसको भी ले लेते हैं। सो दिस इज YE3, दिस इज YE2, दिस इज YE1, ओके। इसके थ्रू भी ग्रेटर पता लग रहा है। नाउ यू हैव ऑल फोर ऑप्शंस फॉर ग्रेटर रेडी विद यू, तो इन चारों को आप फर्दर ऐड कर दीजिए, एक और गेट ले लें, ठीक है। टेकिंग अनदर और गेट, तो ये और गेट लेते हैं हम यहां, तो YG के लिए, तो YG का पहला फैक्टर, दिस इज योर सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड लास्ट, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, L एंड फॉर G। सो दो आउटपुट आ गए हमारे पास लेस और ग्रेटर के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट आउटपुट विच इज द सिंपलेस्ट वन, इक्वल। इक्वल कब होगा, इक्वल आने का एक ही ऑप्शन है कि A3 B3 के इक्वल हो जाए, A2 B2 के इक्वल हो जाए, A1 B1 के इक्वल हो जाए, A0 B0 के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स द ओनली ऑप्शन इज कि सभी कंपैरेटर अपना अपना आउटपुट अगर इक्वल बताते हैं तो मैं कह सकता हूं कि A B के इक्वल है। दैट मीन्स मुझे सभी कंपैरेटर्स का इक्वल वाला आउटपुट, दैट मीन्स YE3 YE2 YE1 YE0 सभी को इकट्ठा करना है और चारों का होना जरूरी है, दैट मीन्स चारों को एंड कर देना है। सो लेट्स टेक इट, so this is YE3, this is YE2, this is YE1 and this is here last one, this is YE0। तो इन चारों का आपने क्या किया, इसके थ्रू पता लग रहा है आपको इक्वल, इन चारों को एंड किया तो ये आ गया आपके पास YE। So in this way we can design comparator of any size using multiple 1-bit comparators, okay। तो इस तरीके से हम अपने कंपैरेटर डिजाइन किया जा सकता है, 3 बिट का भी 4 बिट का भी, और इसके लिए एक्सप्रेशन भी लिखना है ना, तो एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वैसे तो ये जितने भी रेड वाले फैक्टर्स हैं इन सबको अगर आप ऐड कर दें, दिस प्लस दिस थिंग प्लस दिस थिंग, ओके। तो अगर सिस्टमेटिकली लिखना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, दैट YL, इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें, YL के लिए क्या आएगा, YL3 प्लस YE3
YL2, पहले दोनों इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स YE3, YE2, तीसरे के थ्रू पता लग जाए YL1, और लास्ट ऑप्शन क्या है कि पहले तीनों कंपैरेटर के इक्वल आउटपुट आ जाए, YE3, YE2, YE1 एंड लास्ट YL0। ठीक है, सो दिस इज फॉर YL। सिमिलरली YG के लिए भी लिखा जा सकता है। सो YG3 स्ट्रेट फॉरवर्ड MSB पे बात खत्म हो जाए। सेकेंड ऑप्शन कि MSB तो इक्वल है, दैट मीन्स YE3 बट YG2। सिमिलरली पहले दोनों कंपैरेटर का इक्वल आउटपुट हो जाए, YE3, YE2, YG1, एंड सिमिलरली द लास्ट वन YE3, YE2, YE1 and YG0. And this YE, it is simplest YE3 into YE2, YE1 into YE0. Okay, so this is a 4-bit comparator. Similarly, we can make a smaller comparator, 3-bit comparator, using 3 1-bit comparators, or we can extend this for 5-bit comparison as well. एग्जाम में जनरली जो आता है वो 4-bit तक आता है, जो हमने कवर कर लिया है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक BCD एडर ऑफ जो हमारे सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।